Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. I hope you all are well and ready and hopeful to crack the competitive level and competitive examinations. Right. So, what we will be doing, we will be covering 6th, 7th, and 8th Olympiads, NTSC, NSCGS, PRMO, and school examinations. All right. And all such things will be available right from the YouTube platform, definitely. And it will be for free for all the students. Right, and in this regarding, this whole team will be helping you in cracking your school examinations as well as the Olympiads you are fighting for. Now let's move forward. If you want any DPP and study material, you can join our Telegram app. You have to go on Telegram app, write this code TTP07 for your class 7, and then you have to join the channel. That's it. You will be accessing all the DPPs and study material. All right, and the most important thing I wanted to tell you, it's very much important for all the students who are very serious about cracking the examinations, is that if you have any query, you can definitely go on www.talkingtextbooks.in. Okay, on that you will be getting such types of packages. बहुत different packages आपको वहाँ मिल जाएंगे, हर class के different packages वहाँ हैं. ठीक है, and these types of all the features you are getting on that particular package, all such features are of this package. All right, this is just an example, and this is a foundation in Olympiad level. So you will be getting an Olympiad level education with strengthening your foundation too. Right, and what you will be getting, you will be getting comprehensive study material, recorded lectures, homework submission, right, bi-weekly quizzes and periodic test papers. All such things will be available in just 9,000 for you. You have to click on the buy now. You will be forwarded on this page. Now on this page you can see the cost is written here as 9,000. If you write code CYLIVE, if you write this code, you will be getting 30% discount. All right, 30% discount you will be getting, and 2,700 amount will be deducted from the 9,000. So now the package will cost you only 6,300. You have to click on the buy package, and then you will be forwarded on the options you can pay from. All right, if you have any query related to how to do that, how to choose any package, which package will be helpful for you, you can always call on this number. All right, and all your queries will be resolved there. So this is one of the important thing I wanted to tell you if you are really serious about studying. And let's move on. Take out your copies and books first, and take the promise. If you will be watching the whole lecture, and you will be taking the proper notes. Plus you will be revising all the concepts daily, right? आप पूरा backward जितना भी पढ़ाया गया है chapter 1, now this is chapter 2, right? तो आपको क्या करते चलना है, आपको पूरा revise करते चलना है regularly. All right, now let's move on. We will be studying quantities and system of units. ठीक है, आज हम लोग कुछ फंडामेंटल डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई प्रीफिक्सेस एंड सम यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. राइट, देखिए हमने लास्ट टाइम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े, बट हम लोगों ने अभी तक जो है फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज नहीं देखी. आई विल लेट यू नो सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट कि भाई जो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, दीज आर टोटली 7. ठीक है, 2 मतलब 7 फंडामेंटल होती हैं, एंड यू कैन से 2 विल बी द सप्लीमेंट्री वन. ऑलराइट, आई लेट यू नो व्हाट आर दीज. नाउ सी, these are the 7 fundamental physical quantities. All right, and we all have only 7 fundamental physical quantities. That means there are no more than 7. These are the only 7, and all the derived quantities will be formed by using these 7 quantities only. That's why these are the fundamental one, right? Derived quantities can be derived from these quantities only. Now see, one by one, let's see all such quantities. Number 1 is length. ठीक है, number 1 is length. You know what is length? Is the length मतलब the distance between the two ends of a point. Like see, this is a pen, right? You can say it has two ends. This is the one end, this is the second end, right? So the distance between the ends of an object is the length of the object, right? So you can say the length is one of the fundamental physical quantities, and it cannot be derived, it cannot be obtained from any other physical quantity. This is an independent one,
right? Its SI unit is meter and its symbol is M, just a small m, right? Do not use capital M instead of small m, use only small m, okay? Now the next one is mass. You all know what mass is. The mass is the matter in an object is known as the mass, right? The total matter possessed by a body or having by a body is known as mass. Every body has mass. Like this pen too has a mass, right? So the content it is inside this pen, the content inside this pen, the matter inside this pen will constitute its mass, right? So that's why mass is one of the fundamental physical quantity and it is independent, really independent. The SI unit is kilogram. SI unit is kilogram, right? And we write kilogram how? Small k, small g, like this. Okay, this is the symbol of kilogram, right? Now let's talk about the third one, time. What is time? Do we know that time is always flowing? But this instrument, watch, will help us know what the time it is right now. So time can be considered as one of the fundamental physical quantities and it is independent. That means it cannot be achieved, it cannot be calculated, or it cannot be derived from any other physical quantity. That's why it's the fundamental one. Okay, now see, its SI unit is second. We know that 1 second, 2 second, 3 second, it is that second. All right, now see, its symbol is small s. Okay, it's small, do not confuse, it's too small. All right, and yes, now see, next one, fourth one is temperature. You all know the temperature means the heat and the energy around us that's constitute that can give us an idea about the temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर से डेफिनेटली. टेम्परेचर का हम लोगों ने यूनिट सुना होगा डिग्री सेल्सियस. हमने अपने जब हम अपना फीवर चेक करवाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. इन दोनों क्वांटिटीज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट के अलावा भी एक यूनिट होती है टेम्परेचर की एंड दैट्स कॉल्ड Kelvin, and this is the SI unit. So Kelvin is the SI unit of temperature, right? And we used to denote this Kelvin by capital K. All right, it is capital K. We used to denote Kelvin by a capital K. All right, now let's talk about the fifth one, electric current. What is electric current? The electric energy flowing inside the wires so that you will be getting access to the electricity. And obviously, if you are watching this video, you are using an electronic device. That means that also needs energy and that comes from the electric current. All right, now see, this electric current has a unit that is ampere. Whenever you hear or whenever you say like 5 ampere, 6 ampere, 7 ampere, that means you are describing what? Electric current, right? And इसका जो symbol है that is capital A. Ampere को हम capital A से show करते हैं. ठीक है, चलिए अब हम अपना सिक्स्थ वन देखते हैं. सिक्स्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक हम बहुत ही स्मॉलर लेवल पे चले गए लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड ऑल टाइप में. जब हम बहुत ही स्मॉल लेवल की बात करते हैं, सब्सटेंस के अमाउंट की ही बहुत ही स्मॉल लेवल की बात करते हैं, तब हमें पता चलता है दैट इट्स SI यूनिट इज व्हाट? मोल. वी विल बी स्टडिंग दिस इन केमिस्ट्री ऑल्सो, right? So you will be getting a very much clear idea about that. So mole is the SI unit. जब भी हम किसी substance के amount को बताते हैं तो that is in the mole, right? And उसका जो short form है, उसका जो symbol है that is MOL, small m, small o, small l. ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं luminous intensity. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो लाइट की ब्राइटनेस होती है. वी कैन से इंटेंसिटी मीन्स कितना ब्राइट है, कितना ज़्यादा तेज रोशनी है. लाइक आप लोग डेफिनेटली ये मेजर कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में. इन दोनों टाइम में आप लोगों को हमेशा लाइट की जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि आपको उतना ब्राइटनेस फील नहीं होता है, राइट? आपको रोशनी ज़रूर मिलती है, आपको लाइट ज़रूर पता चलती है कि या इट इज़ वेरी ब्राइट, बट दैट नॉट मच ब्राइटनेस उतना तेज़ नहीं होता है जितना कि आफ्टरनून में होता है. आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है. दैट मीन्स आफ्टरनून में लुमिनस इंटेंसिटी सनलाइट की बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? और इवनिंग और मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है?
यू कैन से कि भाई इसकी जो यूनिट है दैट इज कैंडेला. यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस बाय अ कैंडल. ठीक है, कैंडल में क्या होता है, कैंडल में डेफिनेटली हम उसको लाइट करते हैं, हम उसको जलाते हैं एंड उसका एक रोशनी हमको मिलती है उससे. सो दैट इज कि भाई आप वहाँ पे कुछ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को देख रहे हैं. ठीक है, आप वहाँ से लाइट ले रहे हैं, थोड़ा ब्राइटनेस ले रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम दी लाइट. सो यू कैन रिमेंबर दिस यूजिंग कैंडल. कैंडल से हम लोग को रोशनी मिलती है, दैट्स वाई लूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या मिला, कैंडेला. ठीक है, एंड वी यूज टू डिनोट दिस बाय कैपिटल C एंड स्मॉल d. ऑलराइट, नाउ लेट्स नोट इट ऑल. ठीक है, इसको पूरा अच्छे से आपको नोट कर लेना है. रिमेंबर ऑल सच, दीज आर द 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेफिनेटली these should be remembered every single time. So you have note down, right? अब देखो, ये तो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. इसके साथ ही साथ 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं. ठीक है, दोज आर दी सप्लीमेंट्री वन. जैसे हम एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, तो एंगल मेजर करने के लिए हम रेडियन यूनिट यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम एक सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग स्टेरेडियन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन टू, बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द बेसिक वन. में ये आप ऑलवेज अपने हायर क्लासेस में डेफिनेटली इन डिटेल स्टडी करेंगे. सो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. ठीक है, इंपॉर्टेंट है दीज 7. यू शुड नो ऑल दीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. जब भी आपको कोई बोले कि टेल मी द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फटाफट से 7 के 7 आपके दिमाग में आ जाने चाहिए. ठीक है, now let's move on to the derived physical quantities. Now see, derived physical quantities मैंने यहाँ पर सिर्फ 9 derived physical quantities लिखी हैं, लेकिन derived physical quantities बहुत सारी है, like even बहुत सारी physical quantities हैं. ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी बची 7 को छोड़कर, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब की सब डिराइव में आती हैं. सो डिराइव में तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज आती हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज 1, दीज 9. मैं आपको बताऊंगी इनका फॉर्मूला. दीज आर ऑल द बेसिक वन एंड यू शुड रिमेंबर ऑल दीज. ठीक है, आपको इन सभी को रिमेंबर करना है, प्लस आपको इन सभी के फॉर्मूलेज रिमेंबर करने हैं. ठीक है, बिकॉज फॉर्मूलेज आर ऑलवेज हेल्पफुल इन फिजिक्स इफ यू डू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट. सो यू विल बी नीडिंग फॉर्मूलेज. सो मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी, तो मेरे साथ ही साथ हम लोग लिखते भी चलेंगे और स्टडी भी करते चलेंगे. ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है एरिया. ठीक है, दिस इज एरिया. एरिया का क्या मतलब होता है? एरिया का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी कितना सरफेस कवर कर रखती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास कॉपी खुली हुई है, राइट. आप उस कॉपी को टेबल पे आपने रखा हुआ है, तो वो टेबल का जितना एरिया कवर अप कर रही है, जितना सरफेस कवर अप कर रही है, वो है आपकी नोटबुक का एरिया. ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि भाई एरिया वो होता है जो किसी भी सरफेस को, कितने सरफेस को कवर अप करता है. जितना सरफेस कवर अप होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का एरिया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए? वी ऑलवेज राइट लेंथ इनटू लेंथ. ठीक है, लेंथ इनटू लेंथ, दिस इज हाउ वी राइट एरिया. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एरिया. और उसका जो डिराइव्ड यूनिट बना, डिराइव्ड यूनिट क्यों? क्योंकि लेंथ का यूनिट यहाँ पे क्या होता है? मीटर. ठीक है, दूसरे लेंथ का भी क्या होगा? मीटर. सो वी विल बी गेटिंग व्हाट? मीटर स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग. ठीक है, देखेंगे लेंथ के लिए, एक लेंथ के लिए मीटर यूज किया, दूसरे लेंथ के लिए भी मीटर यूज किया, और जब 2 मीटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वी गेट मीटर स्क्वायर. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कवर अप करती है, दैट इज वॉल्यूम. ठीक है, तो आप बोलेंगे दिस ऑब्जेक्ट, ये जो पेन है ये पूरा आसपास में कितना स्पेस कवर अप कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ होने के लिए कितना स्पेस कवर अप करना पड़ रहा है, दैट इज इट्स वॉल्यूम. ठीक है, आपका बॉटल अगर आपके सामने रखा है तो आपका बॉटल जितना स्पेस कवर अप कर रहा है, पूरा हाइट लेंथ ब्रेथ पूरा जितना स्पेस कवर अप कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉटल. राइट, तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं. नाउ वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 लेंथ्स की जरूरत होती है. ठीक है, सो वी राइट इट लेंथ इनटू लेंथ
again into length. So we multiply, I'm so sorry. So we multiply 3 lengths, 1, 2, 3, all 3, right? So it will, its unit will be meter into meter into meter. That means meter cube, right? So that's how we get volume. Let's talk about the frequency. What is frequency? See, the frequency is how many times a body vibrate in 1 second. That's the frequency. So जब आपने आसपास में मच्छर तो बहुत होते होंगे, राइट? सो आपने कभी भी मच्छर के एक अलग सी हमिंग साउंड सुनी है? कभी वो कान के पास आता है तो एक हमिंग साउंड सुनाई देती है. आपको पता है वो किसकी ये होती है? वो होती है आपके जो मच्छर होता है उसके जो विंग्स होते हैं, तो वो अपनी विंग्स को कितनी बार वाइब्रेट करता है इन 1 सेकेंड, तो वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है, राइट? दैट्स हाउ कभी भी कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है, ठीक है, तो वो कितना वाइब्रेशंस कर रही है इन 1 सेकेंड, दैट्स द फ्रीक्वेंसी, ठीक है. एंड वी ऑलवेज राइट फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट? हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 1 टाइम पीरियड. This is the formula for frequency, because I am telling you कि भाई number of vibrations in 1 second. So we are talking about the 1 second the time, right? So it should be 1/time period, है ना? अब देखो टाइम को हम क्या लिखते हैं? हम टाइम का ऐसा यूनिट क्या हुआ? सेकेंड. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसके यूनिट को 1/second, ठीक है? दैट इज द यूनिट. अब हम देखेंगे सेकेंड इनवर्स. ये जो इनवर्स होता है, मैंने ये शायद पहले भी बता चुका है मैथमेटिकल टूल्स में. जब कभी भी ये जो सेकेंड है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जब कभी भी कोई भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है, तब पावर में माइनस लग जाता है, चेंज हो जाता है उसका साइन, ठीक है. नाउ सी, अभी सेकेंड के ऊपर पॉजिटिव साइन था, लेकिन जब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसके पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1 हो जाएगा इसका पावर, ठीक है. और इसे ही हम क्या बोल देते हैं? इसे ही हम बोल देते हैं हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ, ठीक है. दैट इज ऑल्सो नोन एज हर्ट्ज. तो इसका मतलब हर्ट्ज को ही हम सेकेंड इनवर्स भी बोल देते हैं, 1/2 भी बोल देते हैं, ठीक है. नाउ सी डेंसिटी. लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, उसका जितना भी मास है, उसका मास कितना स्पेस कवर अप करता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. जैसे आप रुई को देखेंगे तो रुई बहुत ही लाइट वेट होती है, ठीक है, उसका मास बहुत ही कम होता है, लेकिन वो बहुत स्पेस घेरती है, बहुत स्पेस कवर अप करती है. उसका मतलब उसका डेंसिटी बहुत लो है, ठीक है. तो डेंसिटी का मतलब होता है कि भाई कोई भी मास, ठीक है, कोई भी बॉडी का मास कितना स्पेस कवर अप करता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है. मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी. और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब. देखो हमने वॉल्यूम का निकाला है ना, मीटर क्यूब. सो वी आर राइटिंग हियर मीटर क्यूब. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट केजी मीटर -3. मैंने अगेन वही काम किया है, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया तो वहां पर उसका पावर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड. वी ऑल नो स्पीड. स्पीड का मतलब होता है कि हम कितने फास्ट मूव कर रहे हैं या फिर कितना स्लो मूव कर रहे हैं, दैट इज द स्पीड, राइट. तो स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला वैसे तो सभी बच्चों को लगभग पता होगा. ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है. नाउ सी, डिस्टेंस का होता है यूनिट मीटर और टाइम का क्या होता है? सेकेंड. सो वी राइट व्हाट? मीटर पर सेकेंड, ठीक है. दैट्स हाउ वी राइट मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? हाउ मच अ बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. कितना तेज कोई भी बॉडी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है उसका डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना फास्ट मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट. तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम.
ऑलराइट, एंड डिस्प्लेसमेंट को की जो एसआई यूनिट होती है वो भी क्या होती है, मीटर होती है. सो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, एम एस माइनस का 1. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द एसेलरेशन. एसेलरेशन क्या होता है कि भाई कितना तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है या फिर तुम्हारा कितना स्पीड डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि एसेलरेशन हो रहा है. ठीक है, अगर आपका स्पीड तेजी से बढ़ रहा है तो दैट मीन्स यू हैव एन एसेलरेशन. ठीक है, और अगर आपकी स्पीड तेजी से कम हो रही है, कंटिन्यूसली कम हो रही है, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ नेगेटिव एसेलरेशन. ठीक है, तो एसेलरेशन इज इट इज अ लिटिल बिट थिंग दैट टेल्स यू हाउ मच योर स्पीड इज इंक्रीजिंग. ठीक है, कंटिन्यूसली शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, नाउ सी, जब भी हम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिखते हैं तो वेलोसिटी हमने कैसे बताई है, मीटर पर सेकेंड. तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड. इस टाइम का सेकेंड आया और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड आया, राइट. अब क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शंस की तरह सॉल्व करेंगे. आप लोगों ने मैथ्स में फ्रैक्शन सीखे हैं ना, तो उसी फ्रैक्शंस की तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी विल बी राइटिंग m अपॉन s स्क्वायर. सो इट वुड बी m s माइनस 2. देखो m अपॉन s स्क्वायर, अब ये जब s न्यूमरेटर में जाएगा तो इट वुड बी हैविंग -2 पावर. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्स की. व्हाट इज फोर्स, वी ऑल नो. फोर्स इज लाइक पुशिंग और पुलिंग समवन, दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग फोर्स, राइट. लेकिन जो फोर्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, मास. आप जिस भी बॉडी को धक्का दे रहे हैं उस बॉडी का मास, और वो बॉडी कितना एसेलरेशन से मूव कर रही है वो एसेलरेशन. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वी विल बी गेटिंग द फोर्स अप्लाइड बाय यू, राइट. सो इट वुड बी व्हाट, मास इनटू एसेलरेशन. ऑलराइट, मास इनटू एसेलरेशन. ठीक है, अब मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी. एंड वी हैव लर्न भाई एसेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वी शुड राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. एंड वी विल बी राइटिंग हियर केजी मीटर s minus 2. ऑलराइट, नाउ यू आर गेटिंग इट, कूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर. प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज लाइक कितने एरिया पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है. ठीक है, जो प्रेशर हम लोग रियल लाइफ में फील करते हैं, लाइक द प्रेशर ऑफ स्टडीज, प्रेशर ऑफ एग्जाम्स एंड ऑल, ये तो फिर भी मेंटली प्रेशर्स होता है. एंड सच टाइप्स ऑफ प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिक्स. फिजिक्स में होता है एरिया एंड द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, तो आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितने एरिया पे, दैट वुड कंसिडर्ड एज द प्रेशर, राइट. सो इट फॉर्मूला इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, अभी हमने ऊपर में पूरा बताया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब ये इतना बड़ा बड़ा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने की जगह पर फोर्स के जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन. सो दिस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नोन एज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, राइट. सो दिस इज नोन एज द 1 न्यूटन. सो वी कैन राइट फोर्स एज न्यूटन डिवाइडेड बाय, आई शुड राइट द फुल नेम. ठीक है, आइजैक न्यूटन जो थे उनके नाम पर हम लोगों ने इसका यूनिट रखा है फोर्स का. ठीक है, एंड द एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो इट वुड बी n m minus 2. So that's how you are going to write all the units available for the derived quantities. ठीक है, आपको क्या करना है, derived quantity को देखना है कि भाई वो किससे बनी है, कौन कौन सी यूनिट से बनी है, कौन कौन सी क्वांटिटी से बनी है, and then derive its units from the quantities. ठीक है, now note it down very fast. All such things are important. All right, then next move on to the other things we are going to study today. These are the system of units, various types of system of units, right. देखेंगे जब कभी ऐसा होता था पुराने ज़माने में, लोगों के पास डेफिनेटली कुछ मेजर करने को नहीं था स्पेसिफिक.
जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि भाई 1 kg कितना होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे स्केल में 1 सेंटीमीटर मार्क है, तो तुम बोलोगे इतना होता है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये तुम लोग के लिए फिक्स है, यू हैव ऑलरेडी गॉटन दिस फिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स। लेकिन पहले ज़माने में जब ये नहीं थे तो किस तरीके से मेजर करते थे? जो लोग थे वो अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ करते थे, लाइक दे यूज दिस स्पेन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पेन, द टिप ऑफ योर थम टू द टिप ऑफ योर लास्ट स्मॉल फिंगर। सो पूरा एक फुली स्ट्रेच हैंड में ये जो डिस्टेंस था दैट वुड बी कॉल्ड स्पेन, राइट। सो इस तरह करके उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर यूनिट्स बनाई। बट डिफरेंट वहाँ पे क्या दिक्कत आ गई? वहाँ पर ये दिक्कत आ गई कि हर एक इंसान का बॉडी पार्ट डिफरेंट होता है, राइट। किसी का छोटा हाथ होता है, किसी का बड़ा हाथ होता है, तो दैट वुड बी अ वेरी मच लॉस। जिसका छोटा हाथ होगा उसको छोटी चीज़ें मिलेंगी, राइट, कम लेंथ की चीज़ें मिलेंगी। जिसका बड़ा हाथ होगा उसको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, राइट। सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्शियलिटी, और डेफिनेटली हम लोग को बिल्कुल पार्शियलिटी पसंद नहीं होती है। दैट्स वाई ये डिसाइड किया गया कि वी शुड यूज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड स्टैंडर्ड यूनिट जो सभी के लिए बराबर हो, ठीक है। किसी को ऐसा किसी को दुखी होने का या फिर पार्शियलिटी होने का दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि दे विल बी यूजिंग सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब एक जगह पे जैसे मानो एक जी जो FPS सिस्टम है ये जैसे ब्रिटिश लोगों का है, ठीक है। ब्रिटिश में इसको सबसे पहले जो है अप्लाई किया गया। सो दे यूज FPS सिस्टम। व्हाट इज FPS? F इज फॉर फुट, राइट। लेंथ, लेंथ का जो यूनिट है दे यूज लेंथ, जो कि फुट के यूनिट का उन्होंने चूज किया। सो F इज फॉर दी फुट। फिर आता है P, मास वो लोग लेते हैं पाउंड में, सो इट इज पाउंड, FP, राइट। एंड देन S सेकेंड, तो वो टाइम के लिए सेकेंड लेते हैं, तो FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज दी FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर कहीं और किसी और जगह में देखेंगे CGS यूनिट यूज होता था, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है। व्हाट इज C? C इज फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। यू कैन राइट होल, ठीक है, सेंटीमीटर। एंड G इज फॉर ग्राम्स, ठीक है, दिस इज द मास, राइट। एंड S इज फॉर सेकेंड। सो यू कैन गेट CGS, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। नाउ कम ऑन टू द मेट्रिक सिस्टम, MKS सिस्टम, ठीक है। दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द मीटर, द लेंथ ऑफ यूनिट इज मीटर, एंड देन दिस इज kg, किलोग्राम, मास यूनिट, एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है। दिस इज द टाइम। एंड नाउ सी MKS, ठीक है, यू कैन रिमेंबर ऑल सच थिंग्स। अब नाउ लिसन, यहाँ पर ऐसा हुआ कि भाई एक कंट्री ने FPS सिस्टम अपने यहाँ पे बिल्कुल अडॉप्ट करके रखा है कन्वेंशन से, वो यूज़ कर रहे हैं इसको। दूसरा कंट्री यूज़ कर रहा है लेट्स से CGS सिस्टम, ठीक है। अनदर कोई कंट्री यूज़ कर रहा है लेट्स से MKS सिस्टम। तो अब क्या होगा? मान लीजिए जो कंट्री A था जो FPS सिस्टम यूज़ कर रहा है, वहाँ के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अच्छा सा रॉकेट डिज़ाइन किया है ना, और वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वो बहुत ही इकोनॉमिकल है एंड बहुत ही रीयूजेबल है, एंड लेट्स से व्हाटएवर ऑल द फीचर्स जो उसके पास है, ठीक है। वो ये अपने रॉकेट के डिज़ाइन को कन्वे करना चाहता है कंट्री B से, जो कि CGS सिस्टम को यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन उसको तो फुट पाउंड सेकेंड का तो पता ही नहीं। चलो सेकेंड तो मान लेते हैं, सेकेंड तो सब में कॉमन है, लेकिन उसको फुट का पता नहीं। कंट्री B जो उसकी CGS यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जैसे लेट्स से कि ये है कंट्री A, तो A FPS यूज़ कर रहा है, कंट्री B CGS यूज़ कर रहा है। अब A के साइंटिस्ट ने रॉकेट डिज़ाइन किया एंड ही वांट टू कन्वे इट टू द B, ठीक है। वो B में बताना चाहता है दैट दिस इज टाइप ऑफ रॉकेट आई हैव डिजाइंड एंड ऑल द फीचर्स इंक्लूडेड इट, लेकिन वो समझे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो FP फुटर पाउंड है, ठीक है। वो फुटर पाउंड यूनिट्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है वो रॉकेट का मास किस में बताएंगे? पाउंड में बताएंगे। लेट्स से उन्होंने बताया कि उनका जो रॉकेट है वो 8000 पाउंड्स का है, ठीक है। अब ये जो B कंट्री है जो कि ऑलरेडी ग्राम और सेंटीमीटर को यूज़ करती है एज अ यूनिट, वो तो कंफ्यूज हो जाएगी, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं फुट पाउंड क्या होता है,
राइट तो अगर एक कंट्री अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कोई भी चीज़ डिज़ाइन करती है और वो दूसरी कंट्री से कन्वे करती है तो फिर उसको तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपस में, या फिर अगर कोई बी का साइंटिस्ट कुछ अच्छा सा डिज़ाइन करता है, कुछ बढ़िया सा इनोवेशन करता है और वो कंट्री ए को बताता है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भाई चल क्या रहा है। तो दैट्स वाई एक अच्छी सी सिस्टम ने, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, ये बड़ा सा नाम उसके पूरे डिपार्टमेंट का है जो कि सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स को मेजर करता है। ठीक है, नाउ सी ये जो MKS सिस्टम है ना, ये MKS सिस्टम को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करके इसको बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो MKS सिस्टम है दिस इज ऑल्सो नोन एज दी SI सिस्टम। ठीक है, SI इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि भाई ये जो MKS सिस्टम है ये 3 ही यूनिट्स नहीं होती, इसके साथ और भी एक्सटेंड करके इसको जो है SI सिस्टम बनाया गया। ठीक है, आफ्टर एक्सटेंडिंग इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर एक्सटेंडेड दी, लेट मी राइट इट डाउन ताकि आप लोग इसको भूले नहीं। ठीक है, आफ्टर एक्सटेंडिंग दी MKS सिस्टम, SI system is introduced। ठीक है, इस लाइन को फटाफट से नोट करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस MKS सिस्टम को एक्सटेंड करके और भी ज़्यादा यूनिट्स इंक्लूड करके इसको क्या बनाया है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया। ठीक है, SI सिस्टम हम लोगों ने ये क्रिएट करा है, हम लोगों ने नहीं, ये क्रिएट करा गया है बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट एंड मेजर। ये एक फ्रेंच पीपल थे। ठीक है, फ्रेंच लोगों ने डिसाइड किया कि दैट शुड बी इंटरनेशनल। नाउ इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल का मतलब हुआ नाउ दिस यूनिट्स, दीज ऑल यूनिट्स वर्ल्ड वाइड चलती हैं। ठीक है, अगर आप कंट्री ए को बोलोगे कि भाई हम लोगों ने कोई डिज़ाइन किया है तो आप डिज़ाइन करोगे MKS सिस्टम में, और जब आप कंट्री बी को वो चीज़ें बताने की कोशिश करोगे तो वो समझ जाएगी। क्यों समझ जाएगी, बिकॉज वो इंटरनेशनल सिस्टम है, सभी को इस सिस्टम के बारे में पता है और सभी इसको अडॉप्ट भी करते हैं। So it becomes easier after using the international system, it becomes easier to convey messages from one country to another. So it's easy कि भाई सब जगह एक जैसा सिस्टम होना चाहिए, that's why SI system is used। और हम लोग हमेशा SI सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब हम देख रहे हैं SI प्रीफिक्सेस। नाउ व्हाट आर SI प्रीफिक्सेस? SI प्रीफिक्सेस का मतलब होता है, अभी हमने सीखा मीटर, लेट्स से मीटर, लेट्स टॉक अबाउट ओनली लेंथ। ठीक है, जब हम लेंथ के बारे में बातें करते हैं तो वी नो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इस तरह की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो इनके आगे जो ये लगा हुआ है ना, मिली, किलो, है ना, सेंटी, ये सब जो इनके आगे वर्ड्स लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड दी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस पहले लगे होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके के SI प्रीफिक्सेस लिखेंगे। जैसे देखेंगे ये क्या है, सेंटी, इसके आगे अगर मैं लेंथ लगाना चाहूंगी तो मैं बोल दूंगी सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, मिली, अगर मैं लेंथ ऐड करना चाहूंगी तो मैं मिलीमीटर लिख दूंगी। ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं, किलो किधर गया, ये रहा किलो, किलो, तो इसके आगे अगर मैं मीटर लगाती हूँ तो किलोमीटर बन जाएगा, लेकिन अगर मैं ग्राम लगा दूंगी तो किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं कि उनके आगे हम कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, मीटर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन SI होना चाहिए वो। ठीक है, वो SI यूनिट ही होना चाहिए, जैसे कि किलोग्राम, दैट्स दी SI यूनिट। ठीक है, तो हम मीटर यूज़ कर सकते हैं, उसके आगे ग्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल सच थिंग्स हम लोग सिंपली इन SI प्रीफिक्स से बना सकते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंसेस को भी बता सकते हैं और छोटे छोटे डिस्टेंसेस को भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है, लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज द लाइन। ठीक है, दिस इज द बेस लाइन, ये है बेस लाइन,
और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मीटर, ठीक है, दैट इज मीटर, राइट। अब ये जो मीटर है ना, हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, लेट्स सी। अगर हमने मल्टीप्लाई किया, इफ यू वांट बिग नंबर, अगर मुझे बड़े बड़े नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इस बेस को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। सो आई विल बी गेटिंग ऑल द हायर एंड बिगर 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 नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मीटर से छोटे नंबर चाहिए, लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मुझे छोटे छोटे नंबर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स देखो, 10 की पावर -1 डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस कब लगता है, जब कभी भी कोई भी नंबर अपना पोजीशन चेंज करता है। देखिए ये जो 10 की पावर -1 है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1/10, आई कैन राइट 1/10। जैसे ही ये 10 न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बिकम -1, ठीक है। सो जब कभी भी हम लोगों को क्या करना होता है, छोटे छोटे नंबर लेके आने होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स लेके आने होते हैं, तब हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। और डिवाइड हम कैसे नंबर से करते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इस तरीके के नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेन चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपको यहाँ से लेकर टेरा से, दिस इज द यूनिट टेरा, ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर फ्रॉम टेरा to all the way to, let's say, micro, all the way to you can learn micro, ठीक है, आप माइक्रो तक रिमेंबर कर सकते हैं। तो यू शुड रिमेंबर फ्रॉम टेरा माइक्रो विद अ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक इज द ग्रेट मर्सीफुल किंग hates dragons because dragons continuously murder man, ठीक है। जो एक बहुत ही अच्छा मर्सीफुल किंग है, ठीक है, बहुत ही ग्रेट मर्सीफुल किंग है, वो क्या करता है, ड्रैगन्स को बहुत हेट करता है। वाई सो, बिकॉज ड्रैगन्स हमेशा मैन को मर्डर करते रहते हैं, ठीक है, आदमियों को मारते रहते हैं। सो यहाँ पर आपको इस ट्रिक से रिमेंबर करना है। ये कैसे रिमेंबर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेट मी चूज अनदर पेन। नाउ सी, दिस इज व्हाट, द, राइट, तो इट इज द के लिए हम क्या देखेंगे, टी, टी इज फॉर टेरा, सो यू कैन राइट टी इज फॉर टेरा, द, ठीक है। नाउ लेट्स सी ग्रेट, जी, ठीक है, जी इज फॉर गीगा, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस ग्रेट विद गीगा, ठीक है। नाउ सी मर्सीफुल, एम, मर्सीफुल के एम से हमें क्या मिलेगा, मेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे मर्सीफुल, ठीक है। नाउ सी किलो, किलो के लिए देखो किंग है, किंग इज फॉर के, राइट, सो यू कैन से किंग। नेक्स्ट सी हेड्स, हेड्स के लिए एच यूज हो रहा है, राइट, तो एच हम लोग हेक्टो के लिए यूज करेंगे, हेड्स, ठीक है। फिर देखते हैं ड्रैगन्स, ड्रैगन्स का डी इज फॉर डेका, ठीक है। अब आप सोचेंगे बिकॉज, बिकॉज के लिए बी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम एस आई को बेस मानेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, जो बी है बिकॉज है, हमने क्या किया, उसके एस आई को बेस माना है, दिस बी, राइट, दिस बी इज बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिकॉज बोल देंगे, किसको बोलेंगे, बेस पे, राइट, दिस रेड लाइन ओनली, दैट इज कॉल्ड द बेस लाइन, ठीक है। ड्रैगन्स अगेन डी, अब कौन सा डी आएगा, डेसी, ठीक है, अगेन ड्रैगन्स। फिर आता है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली का सी किसके लिए आएगा, सेंटी के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। अब देखेंगे मर्डर, मर्डर के लिए अगेन एम, और एम के लिए हम लोग यूज करेंगे मिली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैन, वो आदमियों को मर्डर कर देता था, तो एम इज फॉर माइक्रो। So that's how you are going to learn all this from the tera to the micro, ठीक है। टेरा का क्या होता है, 10 की पावर 12 is called टेरामीटर, राइट। गीगा, गीगा is 10 की पावर +9, मेगा 10 की पावर +6, किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, फिर डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6। आपको यहाँ तक तो एट लीस्ट रिमेंबर करना है, ठीक है।
अगर आप यहाँ तक रिमेंबर कर लेते हैं तो यू विल बी अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट से इस ट्रिक को नोट करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ताकि आप एटलीस्ट इनको तो याद कर सको। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम कुछ स्पेशल यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है, स्पेशल यूनिट्स हैं, लेंथ्स की हैं, कुछ मास की भी देखेंगे, कुछ टाइम की भी देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी। माइक्रोन, नंबर 1 इज माइक्रोन। ठीक है, हम लोग माइक्रोन के बारे में पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी उस ट्रिक से रिमेंबर कर लिया है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो और माइक्रोन, दीज आर द सेम थिंग। ये जो साइन बना हुआ है दैट इज कॉल्ड म्यू। ठीक है, दिस साइन इज कॉल्ड म्यू। ठीक है, म्यू, जैसे म्याऊ नहीं होता, म्यू होता है। ठीक है, नाउ सी, ये एम यू है। हाउ टू ड्रॉ दिस साइन? आपको पहले यू बनाना है। ठीक है, और फिर क्या कर देना है, पहले वाले में आपको जो है थोड़ा सा एक डंडा खींच देना। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, दैट्स कॉल्ड म्यू। सिंपल, राइट? नाउ सी, व्हाट इज इट? इट इज 1 millionth, दैट इज 10 की पावर -6 पार्ट ऑफ अ मीटर। उस मीटर का 10 की पावर -6 पार्ट है, राइट? दिस इज द 6th पार्ट, 1 millionth part, right? And is denoted by the symbol mu. It is also called micrometer. ठीक है, माइक्रोन को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर। फिर हम इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो दैट बिकम्स 10 की पावर -4। फिर हम करेंगे 10 की पावर -3। अब मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगी थोड़ी अभी कुछ देर में, क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तब। ठीक है, तो तब हम देखेंगे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट? तो अभी तो हम देखते हैं कि भाई जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग दिस, जब हम कन्वर्ट करेंगे वी विल बी गेटिंग दिस, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की पावर 10, दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 10 को हम बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? अब देखेंगे इट इज 10 की पावर -10 पार्ट ऑफ अ मीटर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए के ऊपर आप एक छोटा सा गोला बना दो, दैट इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट, ठीक है, कितना ट्रैवल करती है। ठीक है, 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर। तो इसका मतलब ये जो लाइट ईयर होता है दैट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब देखेंगे अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट वैक्यूम में, दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर। ठीक है, और आपको ये रिमेंबर करना है 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आपको ये लाना भी आना चाहिए, हाउ टू डिराइव सच नंबर, आपको ये बिल्कुल आना चाहिए। आई टेल यू हाउ टू डू दैट। पार्सेक, पार्सेक इज अनदर बिगर यूनिट। ठीक है, बहुत बिगर यूनिट है, ये लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। ठीक है, पार्सेक, एंड पार्सेक में क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्मी। ये जो फर्मी होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकल यूनिट मीन्स यू कैन से इट एग्जिस्ट। ठीक है, सो फर्मी क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, यू विल बी लर्निंग अबाउट न्यूक्लियस इन हायर क्लासेस। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके जो रेडियस होता है दैट इज दी 1 फर्मी। ठीक है, दैट इज 10 की पावर 15, इट्स इंपॉर्टेंट, 10 की पावर 15, दिस इज दी स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूनिट्स ऑफ मास। 2 तरीके के यूनिट्स हमने देखे हैं। ठीक है, हायर वंस, ये हायर वंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा फार्मर्स खेती करते हैं। ठीक है, और जो फार्मर्स होते हैं जो खेती करते हैं वो बहुत सारा अनाज जो है प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वीट, लाइक राइस, है ना। जब वो उनको जूट बैग्स में फिल आउट कर रहे होते हैं तो वो 1 बैग को 1 क्विंटल का बनाते हैं। ठीक है, 1 क्विंटल का बनाते हैं 1 बैग को। ठीक है, तो दैट मीन्स कि भाई वो एक बैग विल बी ऑफ 1 क्विंटल, दैट मीन्स उस बैग के अंदर इस तरीके के कुछ सैक्स होते हैं ना, जिसको हम जूट बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 100 kg इक्वल्स टू 1 क्विंटल, दैट मीन्स वहां पर 100 kg जो है एक बैग के अंदर फिल आउट किया होता है, 100 kg ऑफ वीट फिल आउट किया हुआ होता है।
ठीक है। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। इसी तरीके से जो मेट्रिक टन होता है दैट इज ऑल्सो वेरी हायर यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो मेट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 kg। मेट्रिक टन, जैसे कि बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, कार्गो शिप्स होते हैं जो सामानों को इधर से उधर लेके जाते हैं, उनका वेट हमेशा टन्स में दिया जाता है बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टाइम। टाइम की यूनिट्स देखते हैं। ईयर सबको पता है, ईयर क्या होता है, 365 डेज इज कॉल्ड 1 ईयर। एंड ऑल्सो ईयर क्या होता है, जब अर्थ सन का 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ईयर, राइट। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन राउंड द सन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ईयर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, you have to remember this. Now next, lunar month. What is lunar month? Lunar month is the time जब moon earth का 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, that is called the lunar month, ठीक है। आप lunar से समझ जाए कीजिए, that is it is somehow related to the moon, ठीक है। lunar मतलब moon, ठीक है। solar मतलब sun, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। Now see, 1 lunar month is the time in which the moon completes 1 revolution around the अर्थ, ठीक है। एंड हाउ मच डेज, दिस इज 227.3 डेज, ठीक है। 1 month लूनर मंथ इक्वल्स टू 27.3 डेज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिलेनियम। मिलेनियम मीन्स अ वेरी बिगर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज 1000 years, ठीक है। सो 1000 years इज कॉल्ड व्हाट, 1 मिलेनियम। यू कैन रिमेंबर बिकॉज 1000 years में तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमारा फ्यूचर जनरेशन एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो आप बोल सकते हो मिलेनियम में हम मिलते नहीं हैं कभी भी, ठीक है। वी कैन नॉट एग्जिस्ट देयर इन मिलेनियम, ठीक है, मिले नहीं हम, यू कैन रिमेंबर दैट, ठीक है। नाउ से सोलर डे। सोलर डे मीन्स जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, इन हाउ मच टाइम, दैट इज कॉल्ड द सोलर डे। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड सोलर डे, ठीक है। दैट इज 24 hours, right, and 86,400 seconds, right. So this can be calculated, आप लोग easily calculate कर सकते हो। तो आप लोग का होमवर्क यही है, कैलकुलेट कि आप 24 hours में कितने सेकेंड्स होते हैं, that is your homework for today. Shake. What is shake? Shake is the, you can say, the smallest unit of time. Smallest, right? देखो 10 की पावर माइनस सेकेंड, 1 shake equals to 10 की पावर माइनस 8 seconds, right? So this is very much small unit of time. Now let's move on to some questions. Let's me do. अब हम देखते हैं कन्वर्जन की, भाई कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ट्राई करो, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करो कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट मेरे साथ साथ भी करते चलो, बिल्कुल सही रहेगा, है ना। तो लेट्स डू इट। 5 नैनोमीटर इंटू मीटर हमको कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है 5 नैनोमीटर इंटू मीटर। नाउ सी 5 नैनोमीटर, ठीक है। एंड वी नो इट्स एंड वी नो दैट मीन्स आई नो दैट यू शुड लर्न दैट, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। अब जब मुझे 1 नैनोमीटर का वैल्यू पता है मीटर में, तो आई कैन कैलकुलेट 5, मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग 5 ऑन दी बोथ साइड, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, 5 नैनोमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, दैट्स हाउ वी शुड कन्वर्ट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किलोमीटर इंटू मीटर। Now let's say we know that 1 kilometer equals to 1000 meter, ठीक है। ये आपको रिमेंबर करने पे आएगा, जब वो आप टेबल रिमेंबर करेंगे तब आपको ये चीज़ अपने आप रिमेंबर होती जाएगी, सो दैट यू कैन यूज दैम इन कन्वर्जन, ठीक है। अब मुझे 1 किलोमीटर का वैल्यू पता है 1000 मीटर, तो मैं क्या 26 किलोमीटर का वैल्यू नहीं पता कर सकती, दोनों तरफ 26 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इट वुड बी सो मच ईजी। दिस इज, मैंने कर दिया दोनों तरफ 26 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिला, 26 किलोमीटर इक्वल्स टू 26,000 मीटर, दैट्स व्हाट आई गेट, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं 2 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 यूनिट्स यूज हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लुक वी कैन राइट इट दिस, ठीक है, 2 किलोमीटर per hour, we can write this
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंट सेपरेटली इसको कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं, 2 किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं। तो 2 किलोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 × 1000 होना चाहिए इन मीटर, तो इट शुड बी 2000 मीटर। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर हमने 1000 किया ना मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पे भी 1000 करना चाहिए। तो 2 किलोमीटर 2 × 1000 मीटर, तो 2000 मीटर हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किलोमीटर से मीटर। अब हम आर को चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज आर, देखो इसमें भी आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। जो 1 आवर होता है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, एक 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, यू शुड नो 60 मिनट्स, राइट। तो देखेंगे हमने लिख दिया यहाँ पर 60 मिनट्स। नाउ टेल मी 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, डेफिनेट सी बात है। सो वी कैन से 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड्स। कैसे लिखा मैंने, ये पहले मैंने ये वाला 60 एज इट इज लिख दिया, फिर इस मिनट का, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, तो मैंने 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड्स लिख दिया, राइट। तो दैट्स हाउ आई कैलकुलेटेड 1 आवर सेकेंड्स। ठीक है, अब जो 1 आवर हो गया है दैट वुड बी 60 × 60 कितना होगा, 3600 सेकेंड्स। तो दैट मीन्स 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब मुझे किलोमीटर भी मिल गया, 2 किलोमीटर भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। देखो किलोमीटर विल बी कन्वर्टेड इन मीटर एंड आर विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि आप किलोमीटर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, लेंथ को ही लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम को ही टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे किलोमीटर अलग से पता चल गया और हमको टाइम भी अलग से पता चल गया आर का। सो लेट्स डू इट। 2 किलोमीटर divided by r will be equal to 2000 मीटर, तो 2000 मीटर divided by 3600 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3600 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये 20 से हमने क्या किया, इन 20 से ये 20 कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, नाउ इट इज 20/36। ठीक है, अब 20/36 को हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स डू दैट, दैट इज 10 एंड दैट इज 1 2। ठीक है, अगेन हम इसको 2 से कर सकते हैं, दैट इज 5/6, तो वी कैन डू 5/6 मीटर पर सेकेंड। दैट वुड बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, देखो कैसे किया हमने, जब हमारा 2000 आया डिवाइडेड बाय 3600 आया, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, जैसे ही 0 से 0 कैंसिल आउट हुए वैसे ही हमारे पास क्या बचा, 20, ऊपर 20 बचा, 36 बचा सिर्फ। अब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 20 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी आई विल बी गेटिंग 10 एंड 36 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आई विल बी गेटिंग 18 नॉट 12, राइट। आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, जब हमने इसको किया 20 को जब डिवाइड किया तो आई विल बी गेटिंग 10 एंड जब 36 को डिवाइड किया आई विल बी गेटिंग 18, राइट। एंड देन अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 10 को डिवाइड करेंगे आई विल बी गेटिंग 5, 2 5 से 10, राइट। एंड जब मैं 18 का करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 9, 2 9 से 18। सो दैट्स हाउ माई आंसर वुड बी 5/9, not 6, right? So it would be 5/9. That's how we are going to convert all such things. हमें सबसे पहले तो SI prefixes वाला जो टेबल है उसको रिमेंबर करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप उस टेबल को रिमेंबर कर लेंगे वैसे आप आगे के कन्वर्जन्स को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, दीज आर द हार्डर वर्ड्स, वेरी हार्ड, लेवल अप हो गया है बिल्कुल। पहले जो था वो तो बहुत इजी वाला था जो मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया। दिस आर द हार्ड वन और इसको आपको होमवर्क करना है। ठीक है, आपको सबमिट करना है थ्रू दी गूगल क्लासरूम्स एंड आपको क्या करना है, आपको डेफिनेट सी बात है कि आगे जो क्लासेस होंगी उसमें सबसे पहले तो मैं इनको क्वेश्चंस को करवाऊंगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, so that's it for today. This is your homework. Take it screenshot and then let's move on.
So we will be learning measurement of various quantities in the lecture 3. All the quantities, length and all such, like all these, volume, density, time. We will be learning all such things together, and we will be learning scalars and vectors in the next classes. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and definitely spread the word towards all your friends and their relatives. So thank you so much.